अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। सर कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस थे सर, कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐड होना चाह रहे थे, हो नहीं मैंने पा भी रहे थे। मैंने भी लिंक शेयर किया है, तो उसमें मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए। तो देखिए, आ गया आपके पास लिंक व्हाट्सएप का? जी सर, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। ठीक है, सही। उस लिंक से दे कैन जॉइन। ठीक है। अच्छा, सो द पावर जनरेशन ट्रांसमिशन रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है। Recording on it. Okay, so the whole power system where power is generated, transmitted, and distributed, it is in three phases. So we must know how a three-phase system actually works. Okay. Now, in a balanced three-phase power system, okay, all the three phases are of equal magnitude and they differ in phase by 120 degrees. Okay. Now, इसमें जो ये चीज आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आप लोगों ने इस सारी थ्री फेज के जो बेसिक्स हैं वो आपने की हुई हैं। लेट मी नॉर्मली इन अ थ्री फेज इन अ सिंगल फेज पावर सिस्टम के आपके पास एक सोर्स है, ठीक है, और उस सोर्स के आगे जो है वो एक आपके पास लोड अटैच्ड है। So whatever is the voltage over here, ये आपके पास एक load है which is R, and then there is a certain current flowing over here, I. Okay, and we say that this V is equal to IR. Okay, in simple terms, मैंने इसको बिल्कुल simple उसमें आपको बता रहा हूँ. Now, what if I need to transmit more power? और वो पावर ऐसी हो कि जो कि इस सिंगल फेज की रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो. Okay? तो what I will do, I would have another सिंगल फेज सिस्टम और उसमें मेरे पास वोल्टेज है और करंट है, एंड देन देयर इज एन आर. नाउ आई कैन ट्रांसमिट ट्वाइस द पावर. ओके, नाउ व्हाट इफ आई नीड मोर पावर? तो मैंने एक तीसरा सिस्टम बनाया और उसमें मेरे पास देयर इज आर एंड देन दिस इज अनदर आई. ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट थ्री फेजेस आ गए. ठीक है, नाउ अगर मैं इसमें आई कैन ट्रांसमिट P power to in three systems, I can transmit 3 times P as the power. Is it clear? अच्छा, now what if ये मेरे पास 3 systems हैं, ठीक है, इसमें मैं इस वोल्टेज को कहूं कि जी ये वोल्टेज है 0 डिग्रीज पे और ये वाला वोल्टेज है 120 डिग्रीज पे. This is at minus 120 and this one is at plus 120. So still I have 3 systems. Okay, और ये 3 systems जो हैं ये equal in magnitude हैं and they differ in phase by 120 degrees. Okay. Now इसमें अगर मैं ये कहूं कि जी ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे मेरे पास how many wires I have? 6 wires. हर फेज की 2-2 वायर्स हैं.
Now, what if I join these two wires, these 3 points like this on this side and on this side and on this side? Okay. So now I have a 3-phase power system. Okay. और इसमें आप देखो तो आपके पास जो 6 वायर्स हैं, ये अब 6 वायर्स से कम होके you end up with 4 wires. One thing. The other thing is कि अगर इसको मैं कहूँ कि जी this is my A, this is my B, and this over here is my phase C. So I have something like this, that this is one phase, this over here is the second phase, and this over here is the third phase, like this. और यहाँ पे जो लोड था उसको मैंने कहा कि जी this is R, this is R, and this over here is R. It is like this. और ये जो न्यूट्रल पॉइंट था ये मेरा यहाँ पे अटैच्ड है. अब दिस इज V with an angle of 0, V with an angle of -120, and this is V with an angle of +120 degrees. अब अगर इसमें मैं देखूं तो what is IA? IA is V divided by R with an angle of 0 degrees. ठीक है. और इसको मैं कहूं कि जी V divided by R is some I with an angle of 0 degrees. दूसरा है मेरे पास IB. IB is V divided by R with an angle of -120 degrees. -120 degrees, or this is some I with an angle of -120 degrees. Okay, and the third one is IC, and this would be I with an angle of +120 degrees. Up there is an IA flowing over here. There is an IB flowing on this side, and there is an IC flowing on this wire. जबकि न्यूट्रल में you have IA plus IB plus IC, they are flowing. Okay. अब अगर इन तीनों को आप ऐड करें तो you end up with 0. This means that 0 current is flowing in the neutral wire. Okay. So as a result, if you have a balanced 3-phase system, you even do not need this neutral wire to supply power. So earlier we were supplying 3 times P with 6 wires. Now we are supplying 3 times V with only 3 wires. Okay. So there is a saving of 3 wires, and imagine that this power is being transmitted from a power plant which is hundreds of miles away to the load. और वहां पे आपके पास दरमियान में ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन का स्ट्रक्चर है, और वहां पे instead of using 6 wires, now you can transmit the same amount of power using 3 wires. So this is the reason that we have all power transmission and distribution is in 3 phase. Okay, ये आपके पास सबसे बड़ा advantage है when it comes to 3 phase power. Okay. Any questions from this? No, sir. Thank you.
तो यही चीज जो है वो हमने यहाँ पे है कि जी आपके पास थ्री फेज सिस्टम है, बैलेंस थ्री फेज सिस्टम है. You got three voltages VAN, VBN, VCN. They are of equal magnitude and they differ in phase by 120 degrees. Now 120 degrees का जो phase shift है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि when you add up all the currents तो उनका जो vector sum हो वो zero. ठीक. So उसमें आपके पास V जो है वो V आ गया, VBN is with an angle of -120. VCN is with an angle of -240 or -240 is also equal to 120 degrees. Now इसमें दो तरह की वोल्टेजेस होती हैं. जो अब तक मैंने वोल्टेज बताई VAN, ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेजेस हैं. VBN is the voltage between the line and the neutral point. VCN is the voltage between the line and the neutral point. Then there are line to line voltages. Line to line voltages are the voltages between two lines. So VA और B के दरमियान जो voltage है, that is VAB. Okay, this is a line to line voltage. Now line to line voltage को अगर मैं लूं तो यहाँ पे if I look at this closed loop, ठीक है, यहाँ से मैं जा रहा हूं तो there is a voltage rise. Okay, this is VAB. Then इस साइड पे आया तो -VAN और फिर यहाँ पे आया तो ये VBN is again a voltage rise. So this would give me VAB as VAN minus VBN, and it is equal to this thing. Similarly, VBC is VBN minus VCN, or VCA is VCN minus VAN. So इसमें if you substitute V with an angle of 0 degrees minus V with an angle of minus 120 degrees, इसका अगर आप वेक्टर सम लें तो यू गेट √3V with an angle of 30 degrees. Similarly, BN और CN को अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो you would get this thing, and similarly CN और AN तो आपके पास ये. तो now these are my three line voltages. अच्छा, अब थ्री लाइन वोल्टेजेस को अगर आप देखें तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो √3V है. यानी A का जो मैग्नीट्यूड था वो V था, तो AB का मैग्नीट्यूड √3 है. This means that the magnitude of the line voltage is √3 times the magnitude of the phase voltage, and it is shifted by +30 degrees. तो एंगल A का था उससे ये 30 डिग्री शिफ्टेड है. सिमिलरली यहाँ पे जो वोल्टेज था उसका ये मैग्नीट्यूड जो है ये √3 टाइम्स है, और ये -120 था तो ये आपके पास -90 आ गया. एंड सिमिलरली CN +120, और उसके अंदर जब +120 के अंदर यू ऐड +30 तो ये आपके पास आ गया. तो these are my three line voltages. The three line voltages are of equal magnitude, और इनको अगर आप आपस में देखो तो इनका आपस का जो फेज डिफरेंस है वो भी 120 डिग्री है. सो दिस इज माय लाइन वोल्टेजेस, और ये जो अरेंजमेंट है जिसको कहते हैं कि जी दिस इज माय वाई कनेक्शन. ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको हम वेक्टर डायग्राम पे देखें तो आपके पास ये है VAN with an angle of 0. VBN was at an angle of -120. तो AN माइनस BN, तो आपके पास VAB जो था ये एंगल आपके पास 30 आ गया. इसी तरह VBN है, ठीक है, इसके साथ आपने जब माइनस VCN किया तो इस डायरेक्शन में आ गया, और इन दोनों का वेक्टर सम जो है वो VBC है, विच इज एन एंगल ऑफ -90 डिग्रीज. ओके, एंड सिमिलरली फॉर VCA. तो यहाँ पे आपके पास ये लाइन वोल्टेजेस आ गए. They are shifted by 120 degrees and their magnitude is √3 times the phase voltage. Balanced Y connection क्या है? Balanced Y connection is that you have got the source and the load both are Y connected. Okay, so this is your a balanced Y connection. इसमें balanced Y connection में अगर आप देखो तो आपके पास IA is VAN divided by B, IB is VBN divided by Z, and this is my ICN.
अच्छा, ये आपके पास बैलेंस वाई कनेक्शन आ गया। सिमिलरली चूंकि तीनों फेजेस जो हैं वो आपके पास सेम हैं, तो इन तीनों फेजेस को सेम होने की वजह से यू ओनली नीड टू सॉल्व फॉर वन फेज, और जो बाकी फेजेस हैं वो चूंकि they would have the same magnitude and their angle would differ by 120 degrees, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक फेज के लिए सॉल्व करते हो। और इस पर्टिकुलर केस में हमने ये किया कि हमने सिर्फ उसको फेज ए के लिए सॉल्व किया। फेज ए के लिए जब हमने उसको सॉल्व किया तो उसमें एक फेज का इक्विवेलेंट यूज किया, और उसमें जो उसके रिजल्ट्स आएंगे उसको हम फिर बाकी वोल्टेजेस पे भी लेके चले जाएंगे। नाउ दिस वन फेज इज अ लाइन टू न्यूट्रल, आपके पास एक फेज है, और उसमें यू वुड हैव समथिंग लाइक दिस कि जी आपके पास एक सोर्स है, लोड है, और फिर आपके पास दरमियान में उसके लाइन है। सो दिस इज माय बैलेंस्ड वाई कनेक्शन को किस तरह हमने सॉल्व किया। देन अगर आपके पास लोड है डेल्टा में, तो डेल्टा को के लिए सबसे जो इजी मेथड है वो ये कि यू चेंज इट इनटू एन इक्विवेलेंट वाई के। और इक्विवेलेंट वाई के लिए ये होता है कि जी आपने जो भी आपके पास जी डेल्टा है, ठीक है, जी डेल्टा डिवाइडेड बाय 3 वुड बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट वाई। अगर आपने उसको डेल्टा के अंदर ही रखना है, तो डेल्टा के अंदर अगर आप उसको रखोगे तो आपके पास अगर ये आई ए है तो दिस इज माय लाइन करंट, और ये आपके पास ए बी सी ए और बी सी जो हैं ये आपके पास हैं, दीज आर नोन एज द फेज करंट्स। Now the line currents and the phase currents are related like this. और उसमें अगर आप देखो तो in case of a delta, line current is under root 3 times the phase current and it is shifted by -30 degrees. जब आप वोल्टेज के केस में देखते हो तो वोल्टेज के केस में it is +30 degrees लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, जबकि यहाँ पे इट इज -30 डिग्रीज। तो इस चीज को हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह के जी आपके पास आई ए बी है, आई ए बी से माइनस आई सी ए कर लें तो आपके पास यहाँ पे आई ए आ गया। इसी तरह बाकी हैं, तो द डेल्टा सिस्टम ओनली हैज जो लाइन और फेज करंट्स हैं वो इस तरह रिलेटेड हैं। सिमिलरली डेल्टा के केस में जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दे आर द सेम। तो ये आपके पास बैलेंस्ड डेल्टा लोड आ गया। और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपके पास डेल्टा में हो तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एन इक्विवेलेंट वाई। ये चीज भी आप अगेन अपने बेसिक सर्किट्स में कर चुके हैं कि जी इफ यू हैव अ load which is in delta, तो ये आपके पास A B C, this is Z A B Z B C और Z C A। यहाँ पे आपके पास अगर एक क्या कहते हैं, एक कुछ इस तरह हो कि A C A C। सो जो डेल्टा है उसका इक्विवेलेंट वाई कुछ इस तरह है कि जी ए इज इक्वल टू जी ए बी जी सी ए, और नीचे इसका सम आ गया। और अगर ये जी सारे इम्पिडेंसेस इक्वल हैं
तो देन आपके पास जी ए इज इक्वल टू जी ए बी डिवाइडेड बाई, और जो मैंने आपको पहले बताया था कि जी वाई इज इक्वल टू जी डेल्टा डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास है। ठीक, अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ पावर इन द थ्री फेज सर्किट्स, तो पावर के केस में कुछ इस किस्म की चीज होगी कि जी जो फॉर्मूलाज हैं पावर के वो कुछ इस तरह के हैं। लेट मी मैं आपको एक अलग से अगर we know that complex power S is equal to VI conjugate. Okay, V भी वेक्टर है, I भी वेक्टर है और S भी वेक्टर है। ठीक है, अब अगर मेरे पास अगर V is some voltage magnitude with an angle of 0 degrees and I is some magnitude with an angle of theta. ठीक है, ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। Based on this, S would be equal to VI with an angle of minus theta. Okay. Now this is VI with an angle of minus theta, या अगर मैं यहाँ पे चूंकि it is leading, अगर मैं कहूँ कि जी this is lagging for an inductive load जो कि most of the cases हैं, तो this would be minus theta, और ये आपके पास यहाँ पे VI with an angle of theta आ गई। Now this is equal to VI cos theta this is VI cos of theta plus J VI sin of theta। ये मेरे पास पावर का एक बेसिक फॉर्मूला आ गया। Now the real part is P and the reactive part is J Q। तो आप अगर इस चीज को इस तरह लें कि जी आपके पास वोल्टेज V था और करंट I है, और ये I जो है दिस इज विद एन एंगल ऑफ थीटा। So for an inductive load, this is the arrangement। और इसको अगर मैं देखूं तो यहां पे मेरे पास एक क्या आ गया, there is a P, there is a Q, और इसमें लेट मी इरेज this is S and this is theta। So this thing is known as the power triangle, and this is the power triangle for inductive load। इसमें जो P है, P के यूनिट्स हैं वॉट्स, Q के यूनिट्स हैं वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, और S के यूनिट्स हैं वोल्ट एम्पेयर। This is also known as real power. This is known as the reactive power, and this S is your apparent power।
and theta, cos of theta is known as the power factor. So what is theta? Theta is the angle between voltage and current. Now, what if the load is capacitive? What would be the relationship between voltage and current? Anyone? Current would be करंट लीड करेगी ना, लीड करेगी, तो आपके पास I यहां पे आया और ये आपके पास एंगल थीटा आया. जी सर. Now in this case you have V with an angle of 0 degrees. I is with an angle of theta. Okay. What would be S? S would be VI with an angle of minus theta, क्योंकि I conjugate है. ठीक है, तो आपके पास जो थीटा था that become minus theta. इस केस में आपके पास क्या आया? आपके पास आया VI cos of theta minus J VI sin of theta. Okay. और this is equal to P minus J Q. इस केस में जो पावर ट्रायंगल बनेगी वो क्या होगी? ये है कि आपके पास P Q अब आपके पास नीचे है और ये आपके पास आ गया S, and now this is minus theta. ये आपका पावर ट्रायंगल है, and this power triangle is for the capacitive load. So inductive load में the current lags the voltage, लेकिन आपका जो पावर फैक्टर एंगल है वो यहाँ पे थीटा है, and the triangle is upright like this. In case of capacitive load, the current leads the voltage, लेकिन आपके पास जो पावर ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ है. So this is how we deal with power when you have capacitive or inductive load. Okay. What is angle theta? Angle theta is the angle between voltage and current. Okay. Now, along the same lines, let us now see what happens in three phase. Okay. Your S is equal to VI conjugate for single phase. Now, since we are dealing with three phase, let us call this single phase S as S phase, which is equal to V phase with an angle of 0 degrees and I phase with an angle of theta for V and lagging के केस में मैं देख रहा हूं. So this is equal to V phase, I phase with an angle of theta, which is ये single phase का केस आ गया. अब now what would be S3 phase?
S3 phase is 3 times S phase, which is equal to 3 times V phase, I phase with an angle of theta. Now, what is the angle theta? The angle theta is the angle between the phase voltage and phase current. ठीक है? Angle theta is the angle between phase voltage and phase current. And this now expression is for three-phase power. Now, since this is represented in terms of phase voltage and phase current, I may want this to be in terms of the line voltage. Okay. Now, for the line voltage, what do I have? I have S three phase, which is equal to 3 times my V phase is actually V line divided by square root of 3. तो मैंने V phase को इस तरह represent किया. I phase is equal to I line, क्योंकि आपके पास अगर Y connection है तो I phase and I line are the same. और ये थीटा जो है ये as is यहाँ पे आ गया. ये वाला थीटा जो था ये as is यहाँ पे आ गया. So what is this S3 phase now equal to? S3 phase is now equal to under root 3 V line I line with an angle of theta. तो ये आपके पास आ गया S3 phase and this is equal to under root 3 V line I line cos of theta plus J under root 3 V line I line sine of theta. Or this is equal to P3 phase plus J Q 3 phase. और इसकी पावर ट्रायंगल बिल्कुल वैसे ही बनेगी जो कि सिंगल फेज की थी, but now it is for the three phase. Where P3 phase is equal to under root 3 V line I line cos of theta. Now my question is, what is this angle theta over here? Anyone? So it will be 0. No. Is this angle theta, is it the angle between V phase and I phase, or angle between V line and I line? क्या है दोनों में से? जी, anyone? नवीद, वकील. Now, in order to figure this out, कि ये theta जो है, is it the angle between V phase and I phase, or it's the angle between V line and I line? We need to see the source of this formula. क्या आपके पास जो S3 phase है, it is 3 times V phase and I phase, and this angle theta
It is the angle between V phase and I phase. When we change this magnitude into line voltage, we converted this magnitude into VL divided by 3. We converted I phase into I line. We converted like this, but this theta remained the same. So although formula में आपके पास V line, I line है, but this theta is the angle between V phase and I phase. It is not the angle between V line and I line. ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखो कि आपका जो पावर ट्रायंगल का जो एंगल है थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन V फेज एंड I फेज। और आपका जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन V फेज एंड I फेज। इट इज नॉट द एंगल बिटवीन V लाइन एंड I लाइन, क्योंकि V लाइन और I लाइन के केस में तो आपका जो है वो 30 डिग्रीज का फेज शिफ्ट आ जाता है। अगर आप देखो आपके पास अगर V लाइन है तो V फेज और V लाइन अगर फॉर अ Y कनेक्शन, फॉर अ Y कनेक्शन, दिस V लाइन का एंगल क्या होगा? दिस V लाइन एंगल वुड बी प्लस 30 डिग्रीज। और I फेज और I लाइन सेम है तो ये सेम हो गया। तो इनके दरमियान जो एंगल है इट इज शिफ्टेड बाय 30 डिग्रीज, जबकि इस फॉर्मूला में ये सिर्फ थीटा है। थीटा केम फ्रॉम द अर्लियर सिंगल फेज फॉर्मूला। तो दिस इज द एंगल बिटवीन V फेज एंड I फेज। ये कॉन्सेप्चुअल सी चीज है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप देखें तो आपके पास डिफरेंट फिर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को आप देख लो कि आपके पास डिफरेंट टाइप के अगर लोड्स हों तो उसको आपने कैसे सॉल्व जो है ना करना है। आपके पास यहाँ पे देयर इज अ लोड व्हिच इज कनेक्टेड इन Y. Okay. So I have a 345 kV three-phase transmission line delivers 500 MVA 0.886 power factor, lagging to a three-phase load connected to its receiving end terminals. Assume the load is Y connected and the voltage at the receiving end is 345 kV. Find the load impedance per phase, line and phase currents, the total real and reactive power which is supplied by the load. Okay. तो अब आप इस केस में देखो तो आपके पास लोड इम्पीडेंस पर फेज क्या होगा? आपके पास इफ दिस इज सप्लाइड बाय अ सोर्स, तो यहाँ पे आपके पास इसका अगर आप क्या कहते हैं सिंगल फेज डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो ये चीज याद रखें कि इट इज 500 MVA 345 kV और 0.866 पावर फैक्टर, ठीक है। 0.866 पावर फैक्टर जो है, this corresponds to theta equals to 30 degrees. The cos inverse of 0.866 is equal to theta equal to 30 degrees. तो पहला क्वेश्चन ये है कि जी द लोड इम्पीडेंस पर फेज। दूसरा क्वेश्चन है कि जी द लाइन एंड द फेज करंट्स एंड द टोटल रियल एंड रिएक्टिव पावर। ओके, ये आपको देखना है। अच्छा, अब आप इसमें देख लो कि जी टोटल रियल एंड रिएक्टिव पावर अगर है तो वो तो बड़ा सिंपल है कि जी आपके पास इट इज 500 MVA 0.866। तो एस आपके पास क्या था? एस कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी और एस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू। तो 500 into 0.866 would give you the real power. ये come out to be 433 megawatt। और अगर 30 डिग्रीज का आप साइन लें तो दैट इज 500 साइन ऑफ 30 डिग्रीज, ये आपके पास आएगा 249.9 मेगावाट। ये आपके पास क्यों आ गया?
लोड इम्पीडेंस क्या है, आपके पास वोल्टेज अवेलेबल है, पावर फैक्टर एंगल आपके पास अवेलेबल है, तो उससे यू कैन फाइंड आउट कि जी व्हाट इज योर वोल्टेज के आपके पास व्हाट वुड बी जी। इसको अगर आप सिंगल फेज की उसमें ले लें तो सिंगल फेज में आपके पास आता है, लेट मी डू इट ऑन अ वाइट स्क्रीन, कि आपके पास आपने सिर्फ फेज ए लिया, दिस इज जेड, ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। देयर इज एन current flowing which is IA, this is your V phase or which is VAN, so Z would be equal to VAN divided by I। V line क्या था मेरे पास, V line था V line was equal to 345, okay. V line is equal to 345 kV, तो VAN आपके पास आया ये आपके पास आया VAN, और आई फेज आपके पास क्या है, या IAN आपके पास क्या है, दिस इज 500 MVA, तो 500 डिवाइडेड बाय 3 सिंगल फेज का आपके पास आ गया, एंड दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय VAN, तो आपके पास IAN आया। IAN के मुकाबले में फिर आपने निकालना है Z इज इक्वल टू VAN डिवाइडेड बाय IAN, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी विच वुड बी दैट फॉर द Z, ठीक है। ये IAN आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो आपका लाइन जो है, लाइन वुड बी द सेम एज IAN, क्योंकि ये एक वाई कनेक्टेड सिस्टम है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। देख लें, आपके पास वी फेज था, आई फेज की वैल्यू आ गई -30 डिग्रीज के साथ, जी फेज आपके पास आ गया ये वैल्यू, आई लाइन एंड आई फेज आर द सेम, और वो पी और क्यू की वैल्यू मैंने पहले से कैलकुलेट कर ली थी। नाउ रिपीट द सेम प्रॉब्लम, ओके, बट नाउ द लोड इज इन डेल्टा, ठीक है। अब जब लोड आपके पास डेल्टा में हो गया, तो नाउ यूर वी लाइन इज इक्वल टू ई फेज, एंड आपका जो आई फेज है वो आपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो Z है, Z इज इक्वल टू V फेज डिवाइडेड बाय I फेज। बाकी की चीजें सेम है, आप देख लो कि आपके पास V फेज इज द सेम विच इज 345 kV, I phase is equal to S divided by 3 in order to change it into सिंगल फेज, और ये आपके पास 345 kV आ गया, तो 483। नाउ योर आई फेज इज 483 और विद एन एंगल ऑफ -30 डिग्रीज, तो Z आपके पास ये आ गया। आई लाइन क्या होगा, आई लाइन आई फेज को आपने √3 से मल्टीप्लाई किया और एंगल को शिफ्ट किया विद -30 डिग्रीज, तो आपके पास ये आ गया। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, वेर एवर यू फाइंड a delta,
convert it into an equivalent Y in order to solve. Advantages क्या हैं for 3-phase power system? आपका पावर फ्लो जो है वो कांस्टेंट है या स्मूथ है, okay? टॉर्क आपकी कांस्टेंट है, द पावर डिलीवरी कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं वो 2 से 3 हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव एडवांटेज। अच्छा, अब बात आ रही है स्मूथ पावर फ्लो की और कांस्टेंट टॉर्क की। अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर देखूं फॉर सिंगल फेज, उस इंस्टेंटेनियस पावर फॉर द सिंगल फेज में देयर इज अ थीटा टर्म देयर, ओके, देयर इज अ टाइम डिपेंडेंट टर्म, ओके, ओमेगा टी की एक टर्म आती है जिसकी वजह से द सिंगल फेज पावर इज पल्सेटिंग। लेकिन 3-फेज पावर के केस में ये पल्सेटिंग कंपोनेंट जो है ये कैंसल आउट हो जाता है और आपके पास जो 3-फेज पावर है दैट कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स वी आई कॉज ऑफ थीटा, बिकॉज ऑफ विच इसमें देखिए आपके पास कोई टाइम का कंपोनेंट नहीं है। ये सब एक्सप्लेनेशन आपको इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है। उसको आप एक दफा गो थ्रू कर लें और वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लें तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़े से आपके रिवाइज हो जाएंगे। जिस तरह हमारे पास पावर फैक्टर की जो है करेक्शन वो सिंगल फेज में होती थी, उसी तरह की पावर फैक्टर की जो करेक्शन है वो 3 फेज में भी हो रही है। और वी कैन ब्रिंग द पावर फैक्टर टू 1 अगर आपके पास इंडक्टिव कंपोनेंट ज्यादा है या कैपेसिटिव कंपोनेंट ज्यादा है, तो यू कैन ऐड द अपोजिट कंपोनेंट। अगर आप इंडक्टिव आपके पास ज्यादा है एंड यू वांट टू इंप्रूव द पावर फैक्टर तो आप उसमें कैपेसिटिव कंपोनेंट डालते हैं, और अगर आपके पास कैपेसिटिव कंपोनेंट ज्यादा है तो उसमें आप इंडक्टिव कंपोनेंट डालते हैं। इवेंचुअली आपका पावर फैक्टर जो है वो क्लोज टू यूनिटी हो जाता है। सो इफ द लोड इज इंडक्टिव then capacitor is added, if the load is capacitive we add the inductor। और उसमें ये कि we are only, अगर हम पावर ट्रायंगल को लें कि ये इंडक्टिव क्यू है तो इसका पावर फैक्टर इंप्रूव करने का मतलब ये है कि वी रिड्यूस दिस एंगल थीटा, ठीक। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम एक माइनस क्यू यहाँ पे देंगे। इस माइनस क्यू की वजह से ये होगा कि ये क्यू और ये क्यू आपस में ऐड होकर जो आपका रिजल्टिंग क्यू है वो छोटा हो जाएगा, और रिजल्टिंग क्यू जब छोटा हो जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा है वो उस हिसाब से कम हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज हाउ पावर फैक्टर इज इम्प्रूव्ड, ठीक है। इसके प्रॉब्लम्स भी आप लोगों ने सॉल्व किए हुए इन इलेक्ट्रिकल सर्किट कोर्सेज। ये सेम चीज है जो कि यहाँ पे रिपीट हो रही है कि जी इस पर्टिकुलर केस में आई हैव अ 3-फेज लोड which has a power factor of 0.85 lagging from a 400-volt bus. In parallel to this load, a 3-phase capacitor bank is connected। तो चूंकि 3-फेज लोड है तो आपके पास जो कैपेसिटर बैंक है वो भी 3-फेज का है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लाइन करंट विदाउट द कैपेसिटर बैंक, व्हाट इज द लाइन करंट विद द कैपेसिटर बैंक? जब कैपेसिटर बैंक ऐड हो जाएगा तो आपको जो लाइन करंट है दैट वुड बी reduced when the line current is reduced, आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन के जो I square R losses हैं they would also be reduced। as a result हम हमेशा चाहते हैं कि जी the load power factor is close to unity ताकि हम लाइन के जो I square R losses हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें। सो सेम थिंग ये यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि जी आपके पास डिफरेंट लाइन करंट्स आ गए। कैपेसिटर को ऐड करने के बाद व्हाट इज द न्यू लाइन करंट, पावर फैक्टर विद द without the capacitor 0.85 or with capacitor it comes out to be 0.98। so this is how power factor is improved। जी, any questions so far? ये आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर था और इसमें ये कि ज्यादा एम्फेसिस
पावर सिस्टम पे था कि जी किस तरह सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है और हम किस तरह बेसिक सर्किट्स को यूज करते हुए सिस्टम की जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं वी कैन एनालाइज दैट। इसमें से कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो मुझे बताइए, मैं आपको बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। No questions from your side, so let's move to the next chapter, which is on transformer. स्लाइड आ रही है नजर? नहीं सर, अभी नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है नजर? जी जी, अब आ रही। तो इनिशियली वी हैड दिस इंट्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में मैंने पावर सिस्टम के बेसिस का बताया आपको। अब ये कि द कोर्स इज पावर सिस्टम स्टेडी स्टेट एनालिसिस और पावर सिस्टम एनालिसिस। फॉर एनालिसिस वी मस्ट हैव अ मॉडल फॉर द पावर सिस्टम, क्योंकि आप एक पावर सिस्टम को अगर देखें तो पावर सिस्टम इज अ वेरी लार्ज सिस्टम और उसका एनालिसिस आप एक एक्चुअल सिस्टम का नहीं कर सकते। आपने जो एनालिसिस करना है वो उसके किसी मॉडल का करना है। ठीक है? अब उस मॉडल के लिए आपको जरूरी है कि आप एक सिस्टम का मॉडल जो है ना वो डेवलप करें। मॉडल डेवलप करने के लिए फर्स्ट वी आर डूइंग इज दैट वी आर डेवलपिंग द मॉडल फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। जब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम का मॉडल बना लेंगे तो उसके बाद फिर देन वी वुड जॉइन दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड वी वुड मेक अ सिंगल लाइन डायग्राम। तो अब अगर हम ट्रांसफार्मर को देखें तो ट्रांसफार्मर इज अ बेसिक ब्लॉक इन एनी पावर सिस्टम। और उस पावर ट्रांसफार्मर की अगर हम डिटेल में जाएं कि हम उसका मॉडल कैसे बना सकते हैं तो उस पे हम थोड़ा सा इस क्लास में वी वुड गो थ्रू द इनिशियल बेसिक्स। और ये बेसिक्स वो हैं जो कि आपने इलेक्ट्रिक मशीन्स के कोर्स में भी पढ़ी हुई हैं कि इन एनी ट्रांसफार्मर के यू हैव अ सर्टेन कोर। उस कोर के अंदर कोर इज समथिंग ऑफ a low permeability material. Low permeability means that it allows the flux to pass through easily without any
हिंड्रेंस, आप एक वोल्टेज को आपने अप्लाई किया, उस वोल्टेज ने फ्लक्स को इस्टेब्लिश किया, और वो फ्लक्स जो है वो दूसरी तरफ कनेक्टेड है टू अ वाइंडिंग ऑन द अदर साइड, और ये फ्लक्स जो है ये दूसरी तरफ है, और बेस्ड ऑन द फ्लक्स लिंकेजेस you can increase or decrease the voltage. Okay. Now, all the time we cannot draw this magnetic core. So, उसकी जगह पे हम ये करते हैं कि हम इसको symbolically कुछ यूं represent करते हैं कि this is my transformer with the primary as N1 number of turns and the secondary is N2 number of turns. Now, this is the case of an ideal transformer. रियल लाइफ में जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो आइडियल नहीं है, बल्कि वो रियल ट्रांसफार्मर्स हैं। तो रियल ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस किस्म का है कि जी आपके पास जो आइडियल ट्रांसफार्मर वाला कंपोनेंट है वो तो इस जगह पे आ गया, ये आपका आइडियल ट्रांसफार्मर का कंपोनेंट आ गया, और फिर एक्चुअल ट्रांसफार्मर में देयर आर वाइंडिंग्स ऑन द प्राइमरी साइड एंड ऑन द सेकेंडरी साइड। तो उस वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है दैट इज R1 इज द रेजिस्टेंस ऑन द प्राइमरी साइड एंड R2 इज द रेजिस्टेंस ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये R1 और R2 आपके पास वहां से आ गए, R1 और R2। then there is a flux leaking on the primary side and on the secondary side। वो जो लीकेज फ्लक्स है वो X1 और X2 से रिप्रेजेंटेड है। Then in the magnetic core you need certain flux to establish the magnetic flux, वो इस वाले कंपोनेंट से रिप्रेजेंटेड है। and then कोर के अंदर एडी करंट लॉसेस होते हैं, and those eddy current losses are represented by this component over here। okay? तो ये आपके पास एक इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर अ रियल ट्रांसफार्मर। ये इक्विवेलेंट सर्किट आपने इलेक्ट्रिक मशीन्स के कोर्स में डेवलप किया है एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसी को हम लेके आगे चल रहे हैं। एंड वी वुड सी कि जी बेस्ड ऑन दिस व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ 3-phase ट्रांसफार्मर, जो कि वहाँ पे मोस्ट केसेस में सिलेबस में या तो इंक्लूड होता है लेकिन उसको पढ़ाया नहीं जाता है, या फिर बाज़ औक़ात इंक्लूड नहीं होता। नाउ this type of a circuit is the circuit for a real transformer। Now, इस किस्म के सर्किट के एनालिसिस में प्रॉब्लम ये आती है कि जी देयर इज अ ट्रांसफार्मर, और एक तरफ N1 टर्न्स हैं, दूसरी तरफ N2 टर्न्स हैं, और वोल्टेजेस यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो व्हेन यू आर एनालाइजिंग अ सर्किट लाइक दिस, तो वो उसका एनालिसिस थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन रेफर दिस इम्पीडेंस फ्रॉम द सेकेंडरी साइड to the primary side, and we know from circuit analysis that impedance can be referred from one side of the transformer to the other side of the transformer if we multiply them with the square of the turns ratio। यहाँ पे ये R2 था, R2 को जब हमने square of the turns ratio से multiply किया तो it is N1 by N2 whole square, और X2 को जब हमने square of the turns ratio से multiply किया तो ये आ गया। तो now my impedance on the secondary side is referred to the primary side, और मेरे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस किस्म का आ गया। नाउ इस किस्म का सर्किट का एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक नोड है, और ये नोड जो है ना ये आपके सर्किट को कॉम्प्लिकेट करती है। तो व्हाट यू कैन डू इज दैट सिंस द वैल्यू ऑफ IE इज वेरी स्मॉल, this branch is known as the magnetization branch। This is your magnetization branch। इस मैग्नेटाइजेशन ब्रांच को आप यहां से, since this IE is very small as compared to the total current, तो आप इस ब्रांच को यहां से यहां पे भी लेके आ सकते हो कि ये ब्रांच को आप यहां पे ले आओ। इससे ये होगा कि ये जो दो इम्पीडेंस है R1 X1 और ये X2 R2 वाली टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो सकती हैं। Since this IE is very small as compared to the total current that the transformer is dealing with, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर हमने इसको इग्नोर किया तो हमने क्या किया, हमने एक्साइटेशन करंट को इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्टिंग द एक्साइटेशन करंट। इससे आपके टोटल सर्किट पे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन आपका जो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है वो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, और उसकी सिंप्लीफिकेशन की वजह से आपके पास जो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट हुआ वो सिंपली आर और एक्स की फॉर्म में आ गया। R includes the resistance of the primary side as well as the resistance of the secondary side, or X includes the resistance of the reactance of the primary and the secondary. तो ये आपके पास आ गया. And for very large transformers, the losses in the winding, they are very small as compared to the total power that the transformer is handling. तो आपने एक्साइटेशन करंट को भी इग्नोर कर लिया और आपने वाइंडिंग के आई स्क्वायर आर लॉसेस को भी इग्नोर किया, तो आपके पास ये वाली ब्रांच जो थी ये भी बीच में खत्म हो गई, और ये अब आपके पास ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है जो कि बाकी बचा. तो इन सिंप्लीफाइड केसेस वी वुड बी यूजिंग दिस वन circuit, and where some a little bit detailed analysis is needed, we would be using this equivalent circuit. Okay? Now ये equivalent circuit जो है इसमें हमने जो चीजें consider की हैं, there are some things that we have not considered, और वो ये हैं कि जी हमने saturation को consider नहीं किया, हमने inrush current को नहीं किया consider, in which case when you close the switch at a certain time, because of the high requirement of the core, there is a big inrush current. अगर आपका एक्साइटेशन करंट नॉन साइनोसाइडल है तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया, और अगर वोल्टेज सर्जेस आती हैं तो वो भी इस केस में कंसिडर नहीं हुई. तो ये चीजें हैं. सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन ये है कि जी व्हेन यू इंक्रीज द फ्लक्स, आपके जो एम्पेयर टर्न्स हैं वो एक खास हद तक इंक्रीज हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते. तो ये कुछ इम्परफेक्शंस हैं जो कि इक्विवेलेंट सर्किट में इंक्लूडेड नहीं है. अगेन इसको आपकी सिर्फ आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जी नॉन साइनोसाइडल की वजह से क्या होता है, और ये तो ये आपका एक ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है जिसको आप लेके आगे चलते हो. ठीक. अब ट्रांसफार्मर के सर्किट्स में प्रॉब्लम ये है कि there is a primary side and then there is a secondary side, और जब आप इनको एनालिसिस करते हो तो there is a voltage change as we go from the primary side to the secondary side, और इसी तरह there is a current change which when you go from a primary side to the secondary side. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक मेथड है which is known as the per unit analysis method. Okay? और पर यूनिट एनालिसिस मेथड ये कहता है कि जी अगर आपने पर यूनिट क्वांटिटीज को अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई किया तो जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है यू कैन एलिमिनेट दैट, और आपकी क्वांटिटीज जो हैं वो पर यूनिट में रिप्रेजेंट होंगी, और पर यूनिट में जब रिप्रेजेंट होंगी तो यू डोंट हैव टू रेफर द क्वांटिटीज फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड. इसको अगर मैं इन सिंपल टर्म्स लूँ तो मैं इसको अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कि जी मेरे पास जो सबसे सिंपल सी एग्जांपल है कि यू आर डूइंग अ बिजनेस इन से आप जो है ना पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हो, और आपका कुछ बिजनेस जो है वो यूएई में है, और कुछ बिजनेस जो है वो आपका लेट्स से सऊदी अरेबिया में है. ठीक. अच्छा, अब पाकिस्तान में जो आपका बिजनेस है दैट इज इन पीकेआर, यूएई में आप जो है ना दरहम में आपका हिसाब किताब चल रहा है, सऊदी अरेबिया में आप रियाल के अंदर डील कर रहे हो. अब whenever you have to deal with various profits and losses, okay, तो अगर आपका से 1000 दरहम का लॉस है तो पाकिस्तान में वो 1000 दरहम नहीं है बल्कि वो 75,000 रुपीस है, और अगर सऊदी अरेबिया में देखें तो वो 1000 दरहम्स में भी 990 रियाल्स हो या कुछ, सॉरी 1050 रियाल हो या कुछ इस तरह का हिसाब हो. तो हर जगह की अपनी करेंसी है और अपने हिसाब से वो उसकी कैलकुलेशन. अब इस चीज को अगर आपने सिंप्लीफाई करना है और आप कहें कि जी मैं अपने ये सारा हिसाब जो है ये रखता हूँ यूएस डॉलर्स में, और जो भी आपके पास क्वांटिटी पाकिस्तान की आती है आपने उसको चेंज किया डॉलर्स में,
जो आपके पास दरहम में आया उसको आपने चेंज किया डॉलर में, और जो आपके पास सऊदी अरेबिया से आया उसको आपने चेंज किया डॉलर में। तो आपने क्या किया, आपने सारी चीज़ों को एक नॉर्मलाइज कर दिया यूएस डॉलर में। जब आपके पास अब ये सारा रिकॉर्ड यूएस डॉलर में आ गया, तो यू कैन add and subtract or multiply using the same currency as over here. Okay. अब आपको कैलकुलेट करना है कि जी मुझे सऊदी अरेबिया में जो लॉस है वो लेट्स से $1,000 का है। तो यू कैन वेरी इजीली फिगर आउट कि जी इस $1,000 को यू चेंज इट इनटू सऊदी रियाल, तो आपके पास वो नंबर जो है वो रियाल में आ जाएगा। अगर इसी तरह कोई नंबर आपने यूएई में देखना है, तो जो वैल्यू यूएई में डॉलर में आई है उसको आप सिंपली दरहम में चेंज कर दें या रुपीस में चेंज कर लें, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो गई, और आपने बीच में से जो कन्वर्जन था वो आपने बीच में से निकाल लिया। इन रियलिटी देखा जाए तो देयर इज अ रेशियो बिटवीन पाक रुपीज एंड यूएई दरहम, देयर इज अ रेशियो बिटवीन यूएई दरहम एंड रियाल, देयर इज अ रेशियो बिटवीन पाक रुपीज एंड रियाल एंड सो ऑन। अब इस तरह के एनालिसिस जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है या मुश्किल है। Similar is the case when you have similar is the case when you are dealing with quantities using transformer। क्या आपके पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ये एक लाइन है, यहाँ पे एक दूसरा ट्रांसफार्मर है, ये लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज है और करंट है, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज है और करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है और करंट है, यहाँ पे आपके पास इम्पीडेंस है, यहाँ पे आपके पास इम्पीडेंस है, यहाँ पे इम्पीडेंस है, यहाँ पे आपके पास पावर, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर। As you go from one side of the transformer to the other side of the transformer, the voltages and the currents they change according to the turns ratio. As you go from one side of the transformer to the other side of the transformer, the impedances change as a square of the turns ratio. Same is the case over here कि जब आप इस साइड से इस साइड पे जाओगे, the voltage and the currents change as per the turns ratio. The impedance changes as per the square of the turns ratio. The power remains the same. Very similar to the currency कि जी जो करेंसी की बाइंग पावर है वो तो सेम हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 75,000 रुपीज जो है वो दुबई में जाके 1,000 कितने दरहम में चेंज हो जाते हैं, और वही 1,000 दरहम अगर से यूरोप में जाता है तो वो मे बी 300 यूरोज हो या 200 यूरोज में चेंज हो जाए। अब उन सब की जो बाइंग पावर है वो तो सेम है, अगर आपने उससे से गोल्ड लेना फॉर एग्जांपल और माइनर फ्लक्चुएशन को निकाल नहीं, ठीक है, बट द conversion is always there when you go from one side of the transformer to the other side of the transformer. Now, what the per unit system would do is that the per unit system would convert all these quantities into per unit. And once they are converted into per unit, these transformers would become irrelevant, or per unit would be the same all across the circuit. तो ये आपका पर यूनिट का कॉन्सेप्ट है, और इसको अगर हम लेके आगे चलें तो द एडवांटेजेस ऑफ द पर यूनिट analysis is that if we properly specify our base quantities, our transformer equivalent circuit can be simplified. The ideal transformer winding can be eliminated such that the voltages, currents, and the impedances are expressed in per unit and they do not change when you refer them from one side to the other side. And this has a significant advantage in power systems, क्योंकि पावर सिस्टम्स में आप अगर सिस्टम को देखें तो आपके पास डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स हैं, जनरेटर्स हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, फिर ट्रांसफार्मर्स हैं। तो अगर आप उस पूरे सिस्टम को पर यूनिट में इस्टेब्लिश कर लें तो आपका जो एनालिसिस है वो बड़ा सिंपल हो जाएगा। अब उसमें कुछ रूल्स हैं कि जी व्हेन यू आर कन्वर्टिंग द सिस्टम इनटू पर यूनिट, तो उसके रूल्स क्या हैं। रूल्स ये हैं कि जी आपका एस बेस जो है वो सेम रहता है थ्रू आउट द पावर सिस्टम, और आपके जो वोल्टेज बेसिस हैं ऑन द अदर साइड, they are selected as per the turns ratio of the transformer.
and any quantity in per unit is the actual quantity divided by whatever the base quantity that you use. तो ये आपका per unit analysis का basic है. अब इसको हम लेके क्लास में हमें टाइम इतना नहीं बचा, so hopefully नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और इसको लेके हम आगे चलते हुए देखेंगे कि किस तरह हम सिंपल केसेस में एक ट्रांसफॉर्मर सर्किट को पर यूनिट के केस में वी कैन एक्सप्रेस. एनी क्वेश्चन? चलें, I'll stop here. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे चलें. ठीक है, थैंक यू. जी एहसन, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. मैंने कहा सर ये लेक्चर यहीं अवेलेबल होगा रिकॉर्डेड? ये रिकॉर्डेड यहीं पे अवेलेबल होगा, लेकिन आप इसको डाउनलोड कर लें. नॉर्मली ये होता है कि 2 वीक के बाद ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है. ठीक हो गया. तो 2 वीक से पहले कर दें. इस इंतजार में ना रहें कि जी मैं जब मिड टर्म आएगा तो मैं एक दफ़ा में सारे लेक्चर्स देख लूंगा और इसी वक्त डाउनलोड कर लूँ. ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है, तो अभी इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसका मैं आपको कोई रिकॉर्डिंग का टाइम है 2 वीक्स है या 3 वीक्स है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता. तो हर रिकॉर्डिंग 3 वीक्स के बाद ओवरराइट हो जाती है. ठीक है, ओके, हाफिज़.